Hello everyone, my name is Rupali from English Coffee, and today I would like to share my experience with you all. What happened with me, I was not interested to learn English, but one day one incident happened with me, so I decided to learn English. One day in front of me, one student asked to me, how are you? So I could not reply that. So I feel very irritation by that I could not reply that word. So I just decided to learn English. Then I was talking to my friends, and one of them, my friend, suggested me to come over English Coffee. So I came for visiting here for watching the view with my father. So at the same time I took admission here. So I got impressed in first time by the Akash sir and by the Sarita ma'am. So when I entered here, I was feeling positive waves over here. But what happened with me when I started to learn English over here? So many people started to criticize me. But I didn't stop myself. I keep on learning. I kept on learning. But many things are there which is not good. Like we feel many problems to learn English. We feel to get hesitation. We feel we are not comfortable to speak in the front of people. So this thing I learned from the English Coffee. I learned here many kind of activities they held over here. I participated in public speaking activity. So I learned from there how to speak in front of many people and how to present ourselves, and confidence building activities like we have to dance in front of audience. By that our confidence build up, and I got many things from English Coffee which is I will not forget in my life. I only learn, and I would suggest you to also to come over here, have a visit, and you will not feel to go from there. You will feel to stay here. I would like to suggest English Coffee is the best platform for learning English. If you want to get motivate yourself, if you want to learn moral values, if you want to make yourself active, so this platform is for you. English Coffee will make you that what you have not thought in your dream also. Thank you. आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब या सेकंड वर्ब का जो कमाल है, बहुत अच्छा कमाल है और बहुत इजी कमाल है। बहुत अच्छे से यूज़ करना है, आंख बंद करके ईडी लगा के यूज़ करिए। कैसे है और एक बार सिखा देता हूँ, आ जाइए। मैंने आपको पहले बताया हुआ था लेकिन फिर से याद दिला देता हूँ। आई पॉइंटेड आउट द फ्लॉ, मैंने वो कमी बताई थी। आई पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मतलब होता है बताना, उसको पॉइंट आउट करना, इशारा करना उसकी तरफ। पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना या बताना। लाइक वो वहाँ दीवार में थोड़ा सा वो क्रैक आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ उस क्रैक को।
यहाँ फ्लॉ मीन्स होता है कमी, तो आई पॉइंटेड आउट द फ्लॉ, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड वैसे होता है पॉइंट आउट, पॉइंटेड क्यों लगा रहा हूँ, पॉइंटेड क्यों किया था, आई पॉइंटेड आउट, राइट। सेकेंड देखिए, यू रीच्ड ऑन टाइम, तुम पहुंचे थे। अब देखिए जनरली क्या होता है, जनरली रीच होता है, रीच मतलब पहुंचना, लेकिन हमने रीच्ड क्यों लगाया, क्योंकि पहुंचे थे। मैं कल की बात कर रहा हूँ, परसों की बात कर रहा हूँ, सुबह की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। यू रीच्ड ऑन टाइम, तुम समय पर पहुंचे थे। हिंदी में तो लग गया थे, अब इंग्लिश में क्या लगेगा, रीच्ड, सेकेंड फॉर्म अभी समझाया था ना। यू रीच्ड ऑन टाइम, तुम समय पर पहुंचे थे। वी हेल्ड मीटिंग, अभी देखिए हेल्ड, होल्ड मतलब होता है किसी मीटिंग को करना, किसी मीटिंग को करने को बोलते हैं होल्ड, राइट। होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। यहाँ अगर आपको होल्ड की सेकंड फॉर्म नहीं बताओ, आप ये भी बोल सकते हैं वी होल्डेड द मीटिंग। इट्स नॉट राइट, इट इज एब्सोल्युटली राइट। मैं हमेशा अपने सभी बच्चों को एक बात बोलता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप इंग्लिश बोलते में अगर आपको उसकी सेकंड वर्ब नहीं आ रही है तो चुप होने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ बोल दो। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी है, इतने अच्छे हैं लोग कि आपकी कमियों को बहुत अच्छे से बताते हैं, हालांकि उन्हें आता हो ना आता हो, लेकिन वो आपकी कमियों को बहुत अच्छे से बताते हैं और आप उसे रिसीव कर लीजिए और आपके पास सीखने के मौके बहुत सारे हो जाते हैं, राइट। आपके दोस्त जरूर बता देंगे कोई ना कोई, अबे अमित ये होल्डेड नहीं कहते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है। आप मन में या उसे बोल दीजिए थैंक यू यार, आज तूने मुझे सिखा दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस से जो सीखने में मजा है वो तो अलग ही मजा होता है। ऑलराइट, वैसे मैं आपको सिखा दिया है, आज के बाद आप होल्डेड नहीं बोलेंगे, आप हेल्ड ही बोलेंगे। ऑलराइट, वी हेल्ड मीटिंग, हमने मीटिंग रखी थी। दे, देखिए यहाँ आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे या उन्होंने। एक से ज़्यादा लोग हो, 2 3 4 5 वो लोग, उन्होंने मीट, दे मैट विद ऑफिसर्स, वे लोग मिले थे। मिलने की क्या होती है, मीट, MEET, मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, लेकिन हम बोल रहे मिले थे, तो यहाँ या तो आप कह सकते हैं मीटेड, लेकिन ये गलत है। नहीं आता हो तो आप मीटेड कहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया आप मीटेड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैट, क्योंकि मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। दिस इज राइट। दे मैट विद ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स से मिले। दे मैट विद ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स से मिले थे, कल परसों तरसों जब भी मिले थे, सुबह मिले थे, 1 घंटे पहले मिले थे। दे मैट विद ऑफिसर्स, राइट। ही सॉ अमित देयर, उसने देखा था। अब देखिए देखने की क्या होती है, सी, SEE, सी मीन्स होता है देखना। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। उसने देखा था, अब हिंदी में तो लग गया उसने देखा था या उसने देखा, लेकिन इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ही सी था, नहीं ना, ही सी था नहीं लगाएंगे, ही सॉ। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। तो सेकंड फॉर्म का यहाँ मतलब है, आप ये बता रहे हो सेकंड फॉर्म जो चेंज कर रहे हो ना, इसका रूट SEE मतलब देखना, इसकी जगह हमने जो सॉ लगाया ना, इसका मतलब ही था होता है, राइट। ही सॉ अमित, उसने देखा था अमित को वहां, देयर। ऑलराइट, और आपको और एग्जांपल दे दूं, मैं गया था, तो जाने की होती है गो, जाने की होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो जब भी हम कल की, परसों तरसों की या सुबह की बात करूंगा ना जाने की, तो आप गो नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वेंट। आई वेंट, मैं कल गया था, आई वेंट यस्टरडे। मैंने सोचा था, थिंक, सोचने की होती है थिंक। थिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है थॉट। क्या होती है, थॉट। आई थॉट, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, आई थॉट अबाउट यू, आई थॉट अबाउट यू, राइट। मैंने पैसे लिए थे, पैसे लेने की टेक मनी, टेक मनी। आई टुक मनी, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, आई टुक मनी। तुम भागे थे, भागने की होती है रन, रन की जो सेकंड फॉर्म होती है रैन, RAN, रैन। तुम भागे थे, यू रैन फ्रॉम हियर। मैं नहीं भागा था, ये आपको अभी कराऊंगा। ऑलराइट, मैंने स्विच ऑन किया था, आई स्विच्ड ऑन द AC। हाँ, मैं बैठा था, आई सैट, सिट माने बैठना, सिट की सेकंड फॉर्म होती है सैट। तो मैं बैठा था, तो सिट नहीं लगाएंगे आप सेट। आई सैट ऑन द सोफा, वो बैठा था, ही सैट, वे बैठे थे, वे, वो, दे सैट ऑन द चेयर। ऑलराइट, आई होप घंटी बज चुकी है, प्रैक्टिस करनी है। आइए, शी फेस द म्यूजिक। अब यहाँ फेस द म्यूजिक का मतलब आप सोच रहे होंगे, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना नहीं, एक बहुत अच्छा फेज है, अमेरिकन वे में इसे बोला जाता है। डांट सुनने को हम बोलते हैं
फेस द म्यूजिक। भैया की डांट लग रही है, भैया की डांट लग रही है अभी। भैया इज फेसिंग द म्यूजिक, मतलब भैया डांट सुन रहे हैं, डांट लगाई जा रही है। ऑलराइट, मैम ने कल मेरे को डांट लगाई थी, मैंने डांट सुनी थी तेरी वजह से। आई फेस्ड द म्यूजिक, फेस्ड सुनी थी, फेस्ड कहेंगे। आई फेस्ड द म्यूजिक, यहां मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने डांट सुनी थी तेरी वजह से। आई फेस्ड द म्यूजिक बिकॉज ऑफ यू। ऑलराइट, देखिए, शी फेस्ड द म्यूजिक, उसने डांट सुनी थी। या म्यूजिक वो गाने वाला नहीं है, ये फेस द म्यूजिक, जो ये जो फेज है, ये वोकैब है, यहाँ मतलब है इसका डांट सुनना। ही ओपन, ओपन माने खोलना होता है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म लग रही है। ही ओपनड द शॉप, उसने शॉप खोली थी। ही ओपनड द शॉप, राइट। 8 देखिए, वी शेयर्ड, हमने शेयर किया था। वी शेयर्ड फूड, हमने फूड शेयर किया था विद ईच अदर। विद ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। वी शेयर्ड फूड, हमने फूड एक दूसरे के साथ शेयर किया था। जब 4-5 दोस्त या सहेलियां बैठ जाते हैं तो मैंने उसका पराठा ले लिया, उसने मेरे चावल ले लिए, मैंने उसको मैगी दे दी, उसकी थोड़े से मैंने अचार ले लिया, तो वी आर शेयरिंग। हमने कल शेयर किया था फूड, वी, हम सब ने। वी शेयर्ड द फूड यस्टरडे। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए शुरू करते हैं इसके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसके मना कैसे करते हैं सेंटेंस के लिए, या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बोलेंगे। आइए शुरू करते हैं।